किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पे चंदन है। किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पे चंदन है। आप सबों का इस प्रोग्राम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अति मान्यवर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आयंद, ब्रह्मेपल्ली के पल्ली पुरोहित फादर एरन्यूस केरकेटा, लिवंस फॉर्मेशन हाउस के डायरेक्टर फादर बिपिन टोपनो, फादर नीरज कंडुलना, अन्य पुरोहितगण, धर्म बहने, माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सबों को जय यीशु, जोहार और नमस्ते। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपने परिचय से आप सबों को रूबरू कराना चाहते हैं। मेरा नाम रोनित मिंज है और मेरा नाम अलेक्स पॉल लकड़ा। आज का प्रोग्राम इस प्रकार है। पहला, स्वागत संबोधन। दूसरा, स्वागत गान। तीसरा, रिमिक्स डांस। चौथा, एक्शन सॉन्ग। पांचवा, छोटी नाटिका। छठवा, आशीर्वचन। सातवां, रिमिक्स डांस। आठवां, धन्यवाद ज्ञापन। अभी मैं लिवंस फॉर्मेशन हाउस के डायरेक्टर फादर बिपिन टोपनो को स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। Right Reverend, His Grace Archbishop Vincent Ayn, the Archbishop of Ranchi, Reverend Father Erenius Kirketa, the Parish Priest of St. Peter's Church, Brahme, Reverend Father Bipin Kandulna, the Dean of Mandar Deanery, respected fathers, sisters, and our dear guests. Good evening to you all. I, on behalf of Livens Formation House, Brahme, stand here to welcome you all to this opening ceremony of the academy year 2026 and 2027. First of all, I extend my heartfelt thanks to His Grace, who generously accepted our invitation to open the academy year 2026 and 2027. I also personally thank His Grace Archbishop Vincent Ayn for appointing me as a new director of Livens Formation House, Brahme. Your Grace, I assure you that I will do my best in forming and molding our candidates. Dear His Grace, fathers, sisters, and guests, it is my immense joy to inform you that this year we have 34 candidates for the Archdiocese of Ranchi, coming from different parts of Jharkhand and the state of Chhattisgarh. 15 are from the Archdiocese of Ranchi, 10 are from Simdega Diocese, 5 are from Gumla Diocese, 2 are from Daltonganj Diocese, 1 is from Khunti Diocese, and another one is from the state of Chhattisgarh. These 34 candidates have responded their calls with deep reflection and discernment through their retreat. We pray to God, seeking His blessing, that these 34 candidates may persevere in their vocations. May the Holy Spirit be their guide throughout this academy year 2026 and 2027. Once again, I, on behalf of Livens Formation House, welcome you and thank you for accepting our invitation and making this evening memorable one through your presence. Thank you very much, one and all. Now, I call on the stage to His Grace Archbishop Vincent Ayn to announce the opening of the academy year 2026-2027. Father Bipin for giving me this honor, and I happily announce the academic year 2026-2027 open.
thank you, His Grace, for opening the academic year of Levens Formation House 2026-2027. फादर विपिन टोपनो को स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं हमारे ब्रदरों को स्वागत गान के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
हमारे ब्रदरों को उनके स्वागत गान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Let us give them a round of applause. Our next program is a dance on a remix songs. इसलिए मैं हमारे भाइयों को मंच पर अपने नाच को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। Welcome dear friends, the stage is yours. जीवन कर दूंगा मैं तो हिलोना डोलोना डर लगेला मुके डर लगेला। जीवन कर दूंगा मैं तो हिलोना डोलोना डर लगेला मुके डर लगेला। बचा ले मुके प्रभु बचा ले मुके यीशु मैं तो डूब जाता। बचा ले मुके यीशु बचा ले मुके प्रभु मैं तो डूब जाता यीशु के राज में शामिल हुआ मैं तो शामिल हुआ। यीशु के राज में तो शामिल हुआ मैं तो शामिल हुआ। भैया रे अरे बहन रे अरे भैया रे बहन रे बिना समय यीशु के पहले बहन रे ये समय मसीह के पहले वो। भैया रे ये समय मसीह के पहले वो बहन रे ये समय मसीह के पहले वो। सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। गाड़ी स्टार्ट कर। अपना भी नाम साला चर्चा में आएगा, करेंगे काम जो चर्चा में आएगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल
दिल है कहाँ मैं हमारे भाइयों को उनके मनमोहक धार्मिक नाच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं हमारे भाइयों को मंच पर अपने एक्शन सॉन्ग की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें।
वाह, व्हाट अ कलरफुल परफॉर्मेंस। चलिए हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। अभी मैं बुलाहट से जुड़ी एक लघु नाटिका के प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर की बुलाहट हमेशा आकाश से आने वाली आवाज़ नहीं होती। वह माता पिता, शिक्षक, पुरोहित, मित्रों और जीवन की घटनाओं के माध्यम से भी हमें बुलाते हैं। हम सभी बच्चे उसी आवाज़ को सुनकर यहाँ आए हैं और इसी बुलाहट से जुड़ी एक छोटी सी नाटिका को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। नाटिका का शीर्षक है ईश्वर की पुकार। राहुल एक होनहार युवक है। उसने फिलहाल ही मैट्रिक की परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास की है। उसके सामने जीवन के अनेक रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। पहला दृश्य। बाबू, ए बाबू, भात खाई ले, जा हाथ धोए के आ। दिन भर तो मोबाइल में लगल रहीसला, काम धंधा तो है ना खब। मोर संग मन से बात करत रहो आयो। उमन के पूछत रहो कि उमन कौन कॉलेज जाते। ठीक है बाबू, पहले भात तो खाए ले। तोर बेकार संग मन, ऊ मन से रहबे तो मतवार बन जाबे। अच्छा से सोच विचार कर बाबू, जिंदगी बनाए कर, फिर दोबारा मौका नहीं आवी। नहीं बाबा, मतवार तो मैं कहियो नहीं बनबू। अरे बाबू, शोभे मन ऐसने कहे ना, लेकिन सड़ा लंबा संगे बेस वाला लंबा भी साइड जाएला। राहुल, अबे राहुल, क्या कर रहा है? क्रिकेट मैच है, चलो खेलने। अबे यार, 5 मिनट रुको, खाना खा के आ रहा हूँ। अबे यार, रोशन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अबे तुमको पता नहीं है क्या, वो तो फादर बनने चला गया। अरे यार, क्या फादर बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनो और खूब सारा पैसा कमाओ। रोशन बेकार का चला गया पादरी बनने। सब लोग मुझे कुछ न कुछ बनने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए सही रास्ता कौन सा होगा? दूसरा दृश्य। जैसु बच्चों, आज हम आत्म संतुष्टि के बारे में बात करेंगे। बताओ, जीवन में हम कब संतुष्ट होते हैं? फादर, जब हम बहुत पैसा कमाएंगे। चलो अब तुम बताओ। फादर जी, जब हम सरकारी नौकरी पाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या संतुष्टि केवल पैसा और नौकरी से ही मिलती है? राहुल, क्या तुमने कभी दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचा है? सेवा? नहीं फादर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा है।
बच्चों, कुछ लोग अपना जीवन ईश्वर और लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित करते हैं, जैसे रोशन हमारे पहले से गए हैं। यह भी एक सुंदर बुलाहट है। दूसरों की मदद करने से हम ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तीसरा दृश्य। बेटा, मैं भूखा हूँ। क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? बाबा, मेरे पास थोड़ा भोजन है, आप इसे ले लीजिए। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे बेटा। अजीब बात है, दूसरों की मदद करके मुझे इतनी खुशी क्यों मिल रही है? उस दिन राहुल ने पहली बार किसी जरूरतमंद की सहायता करके सच्ची खुशी का अनुभव किया। चौथा दृश्य। अरे राहुल, तुम वापस क्यों आए हो? क्या बात है? फादर, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत उलझन में हूँ। मैट्रिक के बाद मैं क्या करूँ? कुछ लोग डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं तो कुछ लोग इंजीनियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सबसे अधिक खुशी किस काम से मिलती है? जब मैं किसी की मदद करता हूँ तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। आज एक गरीब व्यक्ति को मेरा टिफिन दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। यह तो बहुत ही सुंदर बात है। वास्तव में ईश्वर हमारे हृदय में जो इच्छाएं रखते हैं उन्हीं के द्वारा हमें मार्ग भी दिखाते हैं। फादर जी, क्या आपको लगता है कि ईश्वर मुझे किसी विशेष कार्य के लिए बुला रहे हैं? हो सकता है ईश्वर किसी विशेष काम के लिए बुला रहा हो। जाओ, प्रार्थना करो और ईश्वर की आवाज सुनने का प्रयास करो। जरूर ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। प्रिय मित्रों, ईश्वर, माता पिता, पुरोहित, गरीब व्यक्ति और विभिन्न कठिन परिस्थितियों के माध्यम से राहुल को धीरे धीरे मार्ग दिखा रहे थे। अब राहुल फादर बनने के लिए अपना हृदय को बना लिया है। पांचवा दृश्य। आयो, मैं एक बात समझ गेलो। ईश्वर मुके बोला थे, सहेले मोए फादर बने जाए खोजो ना। बेटा, तुर बात सुन के तो मैं ना तो कांदे जाना थो ना हंसे। का हो लकायो, मोर से कोनो गलती हो गई लक्का? ये तो कांदा थिस। नहीं बाबू, ऐसन बात ना थी। तोर फादर बने जाए कर फैसला से तो मोर दिल खुशी से गदगद हो गया, लेकिन तो के दूर भेजे कर मन भी नहीं करेगा। अरे राहुल, तोर माय कर दिल बहुत नरम है। उकर दने ध्यान ना दे, उके मोय देख लेबू। बस तो जे फैसला कर हिस उकर में अडिग रहा। ईश्वर तुके आशीष देव और हम इन दोनों भी तोरे साथ आई। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। प्रिय भाइयों और बहनों,
इस छोटी सी नाटिका के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर की बुलाहट हमेशा स्वर्ग से आने वाली आवाज़ नहीं होती। वह माता पिता, शिक्षकों, पुरोहितों, मित्रों, गरीबों और जीवन की घटनाओं के माध्यम से भी हमें बुलाते हैं। प्रभु, हमें आपकी आवाज़ पहचानने और आपकी बुलाहट का साहस पूर्वक उत्तर देने की कृपा दीजिए। इस सुंदर, रोचक एवं अद्भुत नाटिका की प्रस्तुति के लिए मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए हम उनके लिए जोरदार ताली बजा दें। अभी मैं हमारे रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर विंसेंट आइंद को उनके आशीर्वचन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रद्धेय फादरगण, श्रद्धेय सिस्टरगण, भाइयों बहनों और खासकर हमारे 34 जन जवान आशा लिए यहाँ आए हुए बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। आज तो हम लोग हर एक के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो ये एक अलग चरण में है। लेकिन बात उस समय की है जब हम लोगों ने मोबाइल के विषय में सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी। उन दिनों तो टेलीफोन हुआ करता था, तार वाला, जिसमें डायल करना पड़ता था। तो बात उन दिनों की है जब हम लोगों के हर एक के पास मोबाइल होने की संभावना नहीं थी, ना ही यथार्थ में थी। तो कुछ कुछ बसों में, लंबी यात्रा वाली बस में वीडियो की फैसिलिटी उन दिनों आई हुई थी, सभी बसों में नहीं थी। यानी जो मान लिया आज शाम को रांची से पटना निकलता तो उसको कम से कम एक फिल्म वीडियो में देखने का मौका लगता, अथवा यहाँ से सिलीगुड़ी निकला बंगाल तो हो सकता है एक के बदले 2 भी देख सकता था वीडियो। तो एक व्यक्ति को जाना था सिलीगुड़ी, लेकिन जब वह बुकिंग करने गया टिकट बस स्टैंड में, उन दिनों तो आज की तरह मोबाइल से जैसे हम लोग घर बैठे बुकिंग कर लेते हैं, ये सुविधा कल्पना में भी नहीं थी। जाना था वहीं बुकिंग ऑफिस में टिकट काटने के लिए। टिकट काटने तो गया, लेकिन जब उसने पूछा कि सिलीगुड़ी वाले बस में क्या वीडियो फिल्म मिलेगा, तो उसे बताया गया माफ़ कीजिएगा, उस रूट में तो वीडियो की फैसिलिटी नहीं है, पटना के लिए है। उसको जाना तो था सिलीगुड़ी, ज़रूरत थी सिलीगुड़ी में, वहाँ काम था, लेकिन वीडियो भी देखना था, इसलिए वो चला गया पटना। तो प्यारे बच्चों, आए हो फादर होने के लिए, लेकिन कहीं सिलीगुड़ी जाने के बदले पटना जाने वाले व्यक्ति की तरह कुछ परीक्षा ना हो जाए। उसको ज़रूरत थी, जाने की ज़रूरत थी सिलीगुड़ी, काम था सिलीगुड़ी में, लेकिन चला गया पटना क्योंकि वीडियो ने उसका ध्यान हटा दिया। अपनी ज़रूरत से वो उसका दिमाग हट गया और चला गया पटना। कभी कभी हम लोग बहुत उदारता पूर्वक आते हैं
फादर होने की बुलाहट लेकर के, बहुत अच्छी बात है। जैसे नाटिका में भी रोशन ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया, उसके माता पिता ने भी उसका साथ दिया, लेकिन अपोस्तलिक में आने के बाद, सेमिनरी में आने के बाद, चाहे वह माइनर सेमिनरी हो मेजर सेमिनरी हो, कभी कभी वीडियो जैसा कुछ ना कुछ प्रलोभन आ जाता है, कुछ दूसरी चिंता, कुछ दूसरा स्वाद, कहीं दूसरी ओर ध्यान, और मन भटक जाता है और अपना लक्ष्य हट जाता है। कहाँ जाना था पहुंच गए कहीं और। तो ये खतरा किसी के जीवन में भी होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपना लक्ष्य को साधना, लक्ष्य के प्रति अपनी नज़र बनाए रखना। हम लोग, बहुत से लोग निशाने वाले लोग होंगे, गुलथा चलाते होंगे, तीर भी चलाते होंगे, या हाथ से भी कुछ कुछ पत्थर फेंक करके हम लोग कुछ पक्षी मार सकते हैं वगैरह। लेकिन जितना भी निशाना क्यों ना हो, अगर ध्यान निशाने पर ना रहे, लक्ष्य पर ना रहे, तो हाथ का कौशल काफ़ी नहीं है। ध्यान का होना, लक्ष्य पर अपना ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं कहूँगा उत्सुकता अच्छी बात है, उदारता भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य अपने जीवन में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कुछ मदद की। और इसीलिए यहाँ ट्रेनिंग पर आते हैं ताकि प्रार्थना करना सीखें, ध्यान लगाना सीखें, और बाकी बातों से अपना ध्यान हटा करके कैसे किसी लक्ष्य पर केंद्रित हों, प्रभु पर केंद्रित हों, प्रभु के बताए हुए वचन पर केंद्रित हों। ये सब ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जो हम लोगों को अपना लक्ष्य को साधने में सहायक होते हैं। और इसीलिए ये ट्रेनिंग की बात है। तो यहाँ एक पहला चरण है जहाँ उस प्रकार की ट्रेनिंग मिलेगी, उस प्रकार की शिक्षा भी दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। तो इनकी मदद से अपना लक्ष्य को साधना है, अपने उद्देश्य को धीरे धीरे और स्पष्ट करते जाना है। ये बहुत ही आवश्यक बात है। और इसीलिए हर एक को, 34 के 34 जन को उस दिशा में मैं सफलता की कामना करता हूँ। और जो भी शिक्षा मिलती है, सहायता मिलती है कई रूप में, उसका सही फायदा मिले, उसका सही उपयोग हो, ये कामना भी मैं करता हूँ। और इसीलिए यहाँ के डायरेक्टर फादर, अन्य सहायक फादरों और कहीं से भी आने वाले, जैसे हमारे सर हैं जो रांची से आते हैं, उनकी सहायता हो, और कई लोगों की सहायता से अपना ये जो उद्देश्य है यहाँ आने का वो पूरा हो, और धीरे धीरे एक अनुशासित जीवन जीने की आदत लगे, ताकि अपने लक्ष्य की ओर हर समय अपना ध्यान बना रहे। ये मेरी शुभकामना है। इतना कह करके सबों को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु, ईश्वर का आशीर्वाद। हमारे रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति मान्यवर विंसेंट आयन को उनके कीमती आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो कार्यक्रम ही नहीं जिसमें रोमांचक डांस नहीं हो। तो आइए हम जोरदार के साथ हमारे भाइयों को रिमिक्स डांस की प्रस्तुति के लिए मंच पर स्वागत करें। कौन साग तोड़ा ले भौजी भौजी गे, कौन साग तोड़ा ले भौजी।
हरे लाल साग हरे पत्ता साग लाल साग कौन साग तोड़ा लेके भौजी पत्ता साग लाल साग कौन साग तोड़ा लेके भौजी कौन साग तोड़ा ले भौजी भौजी के कौन साग तोड़ा ले भौजी भौजी के कौन साग तोड़ा ले कौन साग तोड़ा ले सज संवर के निकला लगोरी पूछ दादा घर कहाँ लगे देख के में लागे रे चंपा कली पूछ दादा घर कहाँ लगे रोज रोज तेरे मुखी तंगे बड़ी पूछ सखी घर कहाँ लगे मौके कहे रे चंपा कली पूछ सखी घर कहाँ लगे सजे धजे निकले जब गोरी डहर में हल्ला होएला तब रांची शहर में मोनी सूरतिया देखा के करे घायल बेस बेस छौड़न कर दिल करे पागल आपन के समझे रे खूब सुंदरी पूछ दादा घर कहाँ लगे देख के में लागे रे चंपा कली पूछ दादा घर कहाँ लगे सिल्की सिल्की साड़ी तोरे आँख नीला नीला सिल्की सिल्की साड़ी तोरे आँख नीला नीला अरे सिल्की सिल्की साड़ी तोरे आँख नीला नीला सिल्की सिल्की साड़ी तोरे आँख नीला नीला तो सोना के गहना रे क्या लहर पीला पीला तो सोना के गहना रे क्या लहर पीला पीला और खुला बाल तोरा गाल लगे रसगुल्ला तोर लाली लागल होठ गुया लागे लाल किला तोर लाली लागल होठ गुया लागे लाल किला सिल्की सिल्की साड़ी मोर आई के नीला नीला सिल्की सिल्की साड़ी मोर आई के नीला नीला और सोना के गहना रे कलर पीला पीला और सोना के गहना रे कलर पीला पीला और खुला बाल गोरा गाल लागे रसगुल्ला लाली लगल होठ दया लागे लाल किला और लाली लगल होठ दया लागे लाल किला भाषा कर पट धोना बल्ला रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? मन मचल के मोर होना चाहिए, संगीत की शाम है थोड़ा शोर होना चाहिए। मन मचल के मोर होना चाहिए, संगीत की शाम है थोड़ा शोर होना चाहिए।
दिखाने को तो रात भर डांस दिखाएंगे हम आपको, मगर आपकी तालियों में थोड़ा जोर होना चाहिए। अब मैं आत्मा सांगा को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अति मान्यवर विंसेंट एंड रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, लीवंस फॉर्मेशन हाउस के संचालक श्रद्धेय फादर बिपिन तुपनो, ब्रह्मेपल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर एरेनियस करकेट्टा, मांडर भिखारियत के डीन श्रद्धेय फादर बिपिन कंडुलना, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं और ब्रह्मेपल्ली के सभी माता पिता एवं भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज के इस सुंदर एवं पवित्र दिन के लिए मैं सबसे पहले पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ईश्वर की आशीष एवं कृपा से ही आज का यह कार्यक्रम सुंदर ढंग से संपन्न हो पाया है। आज के मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर विंसेंट एंड रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें अपनी उपस्थिति से ईश्वर की आशीष एवं कृपा का अनुभव कराया है और आज का पवित्र मिशा बलिदान में हमारी अगुवाई की और हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। स्वामी जी, आपके प्यार, प्रार्थना और आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज मैं विशेष रूप से लीवंस फॉर्मेशन हाउस के संचालक श्रद्धेय फादर बिपिन तुपनो को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की अगुवाई से आज का कार्यक्रम सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। उन्हीं के अथक परिश्रम से और शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने हर कामों को सुचारू रूप से संपन्न कराने में मदद किए। फादर जी, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे ब्रह्मेपल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर एरेनियस करकेट्टा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और वे हमेशा हमें सहायता करते हैं। फादर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं विशेष रूप से जितने भी आए हुए पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं और ब्रह्मेपल्ली के सभी माता पिता एवं भाइयों बहनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए और हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। आपके प्यार, प्रार्थना के लिए मैं आप सबों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत एवं कठिन परिश्रम किए हैं। उन्हीं के बदौलत आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मैं विशेष रूप से श्रद्धेय फादर नीरज कंडुलना, फादर प्रमोद कुजूर, उन दोनों फादरों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं और उन्हीं के बदौलत एवं मार्गदर्शन से आज का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। मैं आप दोनों पुरोहितों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ रांची महाधर्म प्रांत के वीडियोग्राफी टीम को, जिन्होंने मिस्सा बलिदान से लेकर अभी तक का कार्यक्रम को अपने कैमरा में कैद किए हैं और रांची महाधर्म प्रांत के चैनल में अपलोड किए हैं। मैं फादर अंजलुस, फादर वल्टर और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय यीशु
थैंक यू। मैं अथना सांगा को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम उसके लिए फिर से और एक बार जोरदार ताली बजाएं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, दाव माखा, गुड नाइट। अभी मैं हमारे महाधर्माध्यक्ष को भोजन से पहले की प्रार्थना के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे सृष्टिकर्ता और परम दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरी सृष्टि हैं, तेरी संतान हैं और तेरी योजना के अनुकूल ही बने हैं और तेरी योजना के अनुकूल ही हमें अपने जीवन को जीना है ताकि इसे हम कृतार्थ कर सकें और तेरी योजना को पूरा करते हुए तुझे खुश कर सकें। अतः हमारे इन बच्चों को तूने उनके जीवन के लिए जो संकेत दिया है उस संकेत के पूरी पहचान के लिए वे यहाँ प्रशिक्षण पाने के लिए आए हैं। ऐसी कृपा के लिए, ऐसी रोशनी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनमें जो अभी उत्साह है, अच्छे विचार हैं, इनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उनके अच्छे आदर्श माता पिता और सगे संबंधियों और दितनों ने भी उनके जीवन निर्माण में, उनके विश्वास वाले जीवन में यहाँ तक आ पाने के लिए जो सहायता उन्होंने दिए हैं, उनके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और अब यहाँ से वे सही दिशा में तेरी इच्छा के अनुकूल अपने को आगे बढ़ा पावें, ये प्रार्थना हम तेरे पास रखते हैं। और आज इस खुशी में जो हम धन्यवाद मिस्सा चढ़ा सके और अभी ये सुंदर कार्यक्रम हो सका, सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुआ, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। और अब इस खुशी को हम लोग प्रेम पूर्वक हमारे लिए बनाए गए भोजन को आपस में बांटकर खाते हुए हम उसे महसूस करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ में अपनी खुशी हम साझा करना चाहते हैं। अतः इस भोजन पर अपनी आशीष दे। इसे जिन्होंने बड़े श्रद्धा और प्रेम से तैयार किया उन पर भी अपनी आशीष दे और हम सभी पर जो इसे खा करके तृप्त होंगे हम सभी पर अपनी आशीष दे। यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।